Assalamu alaikum to all of you, dear students. Class 12th subject maths topic matrix multiplication or its properties of matrix multiplication. Now, lastly, we discussed the matrix addition and properties of matrix addition. Also, we discussed in the previous class the product of a matrix by a scalar and properties of scalar multiplication of a matrix. Now today we will take matrix multiplication. Under what conditions we can multiply two matrices. Now for the convenience, a product of two matrices, the product of two matrices A and B is defined only when number of columns in matrix A is equal to the number of rows in column B. इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, तो मैट्रिक्स ए और बी का मल्टीप्लाई हम उसी सूरत में कर सकते हैं जब मैट्रिक्स ए के कॉलम्स जो हैं वो बराबर होंगे रोज जो है मैट्रिक्स बी में, यानी मैट्रिक्स बी के रोज के बराबर होने चाहिए कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए. दैट इज नंबर ऑफ product of two matrices A and B is defined only when the number of columns in matrix A is equal to the number of rows in matrix B. Let A is a matrix whose elements are Aij. It is of order m cross n. Let A is a matrix of order m cross n and B is another matrix of order whose elements are B and say j k of order n cross p. Then the product of these two matrices is another matrix whose order is m cross p, Here m is number of rows and n is number of columns, n is number of rows and p is number of columns. That means A has m rows and n columns and B matrix has n rows and p columns. According to this definition, number of columns of matrix A should be equal to number of rows of matrix B. Then the two matrices A and B are conformable for multiplication, or AB or product AB is defined. The product of these two matrices is another matrix C. It will be another matrix C whose elements are C, I and K of order, it will be of order n cross p, m cross p, m by p. This matrix is C is another matrix which is product of A and B is the matrix is product of matrix A and B. Here we see number of columns. This is number of columns. This is number of rows. Number of columns of this matrix should be same as number of rows of second matrix. Number of columns, this is columns, it is rows into columns, it is also rows into columns. ये order हम लिखते हैं rows into columns. Number of columns should be equal to number of rows. Number of columns of first matrix should be equal to number of rows of second matrix. Then product AB is defined. If these are the two matrices of the order m cross n and n cross p, then their product is another matrix C whose order is m cross
पी। यहाँ सीधा ये n और n ये सेम जो नंबर है ये हम यहाँ डिलीट करते हैं, तो यहाँ रहता है m क्रॉस p। तो इज द प्रोडक्ट ऑफ a एंड b। तो अब आप समझ गए होंगे कि if we have two matrices A and B, that is number of columns of first matrix should be equal to number of rows of second matrix। ये आप याद रखें, प्रोडक्ट के लिए ये एक ज़रूरी कंडीशन है। प्रोडक्ट हम तभी कर सकते हैं जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, देन ओनली वी कैन मल्टीप्लाई वन मैट्रिक्स बाय अनदर मैट्रिक्स। ये हम एक एग्जांपल से थोड़ा क्लियर करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, प्रोडक्ट को हम मैट्रिक्स ये सीखना ज़रूरी है। हाउ वी कैन टेक द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। अगर हम एक मैट्रिक्स ए लेते हैं 2 3 4 1 1 0, ये एक मैट्रिक्स है। इट इज ऑर्डर हम जरूरी लिखेंगे यहाँ 3 क्रॉस 3/2 मैट्रिक्स, 3 रोज और 2 कॉलम्स। और दूसरे मैट्रिक्स लेंगे हम अपनी मर्जी से, कोई मैट्रिक्स हम लेंगे या 2 1 3 1 1 2। This is another matrix of order 2 क्रॉस 3। यहाँ इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स, इसमें 3 रोज और 2 कॉलम्स। तो इसका मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं आराम से, ये कन्फर्मेबल है, बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ rows of second matrix, number of columns of first matrix is equal to number of rows of second matrix। तो A और B का प्रोडक्ट हमें एक और मैट्रिक्स मिलेगी जिसका ऑर्डर क्या होगा 3/3। यानी अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स 3/2 मैट्रिक्स होगी और दूसरी 2/3 मैट्रिक्स होगी, तो इनका प्रोडक्ट जो आएगा वो एक और मैट्रिक्स होगी जिसका ऑर्डर 3/3 होगा। यानी इसका ऑर्डर जो है ए बी, एक ऐसी मैट्रिक्स हमें मिलेगी जिसका ऑर्डर 3/3 होगा। यह आप याद रखें। तो चलो वी विल टेक द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू ए बी। हम ऐसे लिखते हैं 2 3 4 1 1 0। इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम इस मैट्रिक्स के साथ 2 1 3 1 1 and 2। So these are two matrices। तो प्रोडक्ट करने का तरीका क्या है? तो प्रोडक्ट कैसे करेंगे हम इनका? हम इसका रो लेते हैं, रो, और यहाँ कॉलम, इसका कॉलम और इसका रो, इस सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम और फर्स्ट मैट्रिक्स का रो, इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखो कैसे करेंगे हम मल्टीप्लाई। 2 into 2 2 into 2 A11 एलिमेंट जो आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 into 2 प्लस 3 into 1 3 into 1। इसी तरह से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इस कॉलम को करेंगे 2 into 1, ये A12 एलिमेंट आएगा, 2 into 1 प्लस 3 into 1 3 into 1। और A13 एलिमेंट फर्स्ट रो, इस रो से हम या इस कॉलम को करेंगे 2 into 3 प्लस 3 into 2 प्लस 3 into 2। यानी हम पहला रो इसका लेंगे और इसका पहला कॉलम एक एलिमेंट बनेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहला रो सेकंड कॉलम दूसरा एलिमेंट बनेगा A12 जो लेते हैं हम,
और तीसरा फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, यहाँ तीसरा एलिमेंट हमें मिलेगा फर्स्ट रो का। और इसी तरह से हम यहाँ सेकंड रो लेंगे, रो इसका और इसका कॉलम, रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम। 4 into 2 प्लस 1 into 1, इसी तरह से सेकंड कॉलम 4 into 1 प्लस 1 into 1, इसी तरह से फर्स्ट सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम 4 into 3 प्लस 1 into 2, 1 into 2। इसी तरह से हम अब लेंगे हम क्या, थर्ड रो यानी A31 एलिमेंट, थर्ड रो, दिस थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, 1 into 2, 1 into 2 प्लस 0 into 1, 0 into 1। इसी तरह से थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 into 1 प्लस 0 into 1, 0 into 1। इसी तरह से थर्ड रो थर्ड कॉलम A33 एलिमेंट जो आता है हमें A33, तो 1 into 3 प्लस 0 into 2, प्लस 0 into 2। ये मैट्रिक्स हमें मिलेगी 3x3। इसका ऑर्डर जो होगा 3x3 होगा। देखो क्या होगा, मैट्रिक्स क्या बनेगा हमें, 2 into 2 4, 4 plus 3 1 are 3, that is 7, 2 1 are 2 plus 3, it is 5, 2 plus 3, 2 into 3 6, 3 into 2 6, 6 plus 6 12, 4 2s are 8 plus 1, that is 9, 4 into 1 4 plus 1, it is 5, 4 into 3 12 plus 2 1s are 2, 12 plus 2 14। क्या मैट्रिक्स हमें आएगी है, 1 into 2 plus 0 into 1, that is 2, 1 into 1 plus 0 into 1, that is 1, 1 into 3 plus 0 into 2, that is 3। तो ये मैट्रिक्स हमें आ गई है A into B। तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं दो मैट्रिसेस को। तो ये मैट्रिक्स हमें क्या मिल गई, 3x3, जो मैंने पहले ही आपको बताया था कि अगर 3x2 मैट्रिक्स होगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x3 मैट्रिक्स से, तो हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर 3x3 होगा। तो यही हमें यहाँ प्रोडक्ट में मिल गया। तो बाय दिस वे वी कैन take the product of two matrices. This is product, this is all about product of matrix. Now we will see on matrix multiplication. It is not मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये नॉन कम्यूटेटिव होता है, नॉन कम्यूटेटिव होता है, या नॉन कम्यूटेटिविटी, ये नॉन कम्यूटेटिव होता है। दैट इज अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, अगर हम ए मल्टीप्लाई बाय बी करेंगे तो ये बी इंटू ए नहीं होगा। A into B is not equal to B into A. That means commutative law does not hold good in matrix multiplication. Also, if AB is defined, and BA is defined, जब दोनों डिफाइन होंगे तब भी ए बी इज नॉट सेम एज बी ए, ये बराबर नहीं होगा और सेम भी नहीं होगा। अगर ये दोनों डिफाइनेड भी होंगे तब भी ए बी इज नॉट एज व्हाट इज बी इंटू ए। अगर ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी ए के
जैसा मैट्रिक्स नहीं मिलेगा हमें, ये इक्वल नहीं होगा। प्रोडक्ट में हम अगर हम ए और बी को प्रोडक्ट करते हैं तो ए को हम कहते हैं प्रीफैक्टर। इस प्रोडक्ट में अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं इनका प्रोडक्ट, ए को कहते हैं प्रीफैक्टर और बी को कहते हैं हम पोस्ट फैक्टर। या अगर हमारे पास बी इंटू ए होगा तो यहाँ बी होगा प्रीफैक्टर और ए होगा पोस्ट फैक्टर। मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे ए बी को, ए प्रीफैक्टर होता है और बी को हम, ए इज कॉल्ड प्रीफैक्टर, बी इज कॉल्ड पोस्ट फैक्टर। हियर if it is b is called prefactor and a is called post factor. इसकी वजह एक और प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ देखते हैं क्या ये होल्ड करता है या नहीं करता। अगर हमारे पास इफ ए बी एंड सी और थ्री मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर, अगर इनका ऑर्डर होगा m क्रॉस n क्रॉस p एंड p क्रॉस q, p बाई q, यानी अगर हमारे पास a मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर m बाई n होगा और b मैट्रिक्स इसका ऑर्डर n बाई p होगा और c मैट्रिक्स इसका ऑर्डर p बाई q होगा, देन क्या होता है, देन associative law holds good. That is, if we take a into bc, यानी इनको bc प्रोडक्ट ये होगा बराबर a b into c, यानी ऐसे भी हम कर सकते हैं। एसोसिएटिव लॉ इसमें होल्ड्स गुड। अगर हम पहले बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसके बराबर होगा। अगर हम ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे फिर सी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इट इज एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स गुड। दिस इज एसोसिएटिव लॉ, दिस इज एसोसिएटिव लॉ holds good. That is, if A, B and C are of three matrices of order m cross n, n cross p and p cross q, then A multiply B multiply by C, यानी फर्स्ट हम B और C को मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसको A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, या ये इसके बराबर भी होगा A multiply by B फर्स्ट then the product is multiplied with C, ये बराबर होगा। तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेकंड, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को if A is a matrix of order m cross n, and B and C यानी दो मैट्रिक्स B and C, both are of order n cross p, यानी अगर एक A मैट्रिक्स इसका ऑर्डर A is a matrix of order m cross n and B and C both are of order n cross p, then क्या होगा, then A into B plus C, अगर हम पहले B डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, A
मल्टीप्लाई करेंगे बी प्लस सी, पहले बी प्लस सी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे बी प्लस सी, बी और सी को ऐड करेंगे इफ बी एंड सी आर ऑफ द सेम ऑर्डर एंड A's order is m cross n, b has n cross b has n cross p order and c has also n cross p order. तब क्या होगा, किसके बराबर होगा ये, ए बी प्लस ए सी. दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. और ऐसे भी हम लिख सकते हैं ए इंटू बी प्लस सी, यही है ठीक. This is distributive law holds, then good. This will be more clear if we take the examples, and we will also clear it when we do the exercise 3.2. Now these were some properties of matrix multiplication.